हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर का कंटेंट है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर मीन्स ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन एंड line of action of all forces are parallel to each other. Forces, one other force is F1 and F2 lie in the same plane and line of action of F1 and F2 are parallel. Equilibrium condition for coplanar parallel force system. Equilibrium of two parallel force system. Resultant of a partial coplanar force system. Direction of resultant. Equation of equilibrium of coplanar parallel force system. For the coplanar parallel force system, at the equilibrium condition, algebraic summation of all forces in x direction should be 0. Algebraic summation of all forces in y direction should be 0, and moment of all forces about any point in the plane should be 0, means that force system are under the equilibrium condition. Parallel forces are divided in two parts, like in nature and unlike in nature. If the line of action of forces are in same direction, it is called like. It is called like forces, like parallel forces. If the direction of forces are opposite in direction, it is called unlike forces. Two parallel force system. If two forces are acting at any body on the rigid body, so what is the resultant? So here resultant are sum of the force F1 and force F2. If parallel forces are like in nature, so resultant should be uh, sum of the all forces. If the parallel forces are unlike and unequal, here F1 is greater than F2, so resultant should be F1 minus F. So if forces are unlike in nature, so resultant are subtraction of both the forces. What is position of R? I will be discuss these things in Warrington theorem. Here one condition is there, one beautiful condition is there. If two forces are unlike but equal in magnitude, here force F1, sorry, F and F, unlike in nature and parallel, so what is the resultant? The resultant should be F1 minus F2. What is movement? Movement of the force system about any point in the plane should be F into. So it is called couple, and it is also called couple movement. So couple movement is F into D, magnitude of any force into D. Distance between line of action of both force is the distance between line of action of both the forces. So it is couple. The beauty of couple is that the moment at any point in the plane should be force into distance between both the forces. Resultant of a partial coplanar force system. बहुत सारे फोर्स लगे हुए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, कनकरेंट नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्स का एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालते हैं, सिग्मा ऑफ एफ एक्स। देन सारे फोर्स का y कंपोनेंट निकालते हैं, सारे फोर्स का y कंपोनेंट निकालते हैं, माने इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज इन y डायरेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर।
तो हम क्योंकि हमारा जो है सिग्मा एफ एक्स से हो जाता है, सिग्मा एफ वाई ए हो जाता है, और रिजल्टेंट यहाँ से आर पास करते हैं, और एंगल जो होता है क्या होता है, ये क्या डायरेक्शन ऑफ आर, तो इसको क्या, इसको निकाल दे tan थीटा इक्वल टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। सिग्मा जैसे सिग्मा एफ एक्स आइदर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सिग्मा एफ वाई आइदर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो जितने भी केसेस है, चार फोर कोऑर्डिनेट है, फोर फोर कोऑर्डिनेट में कहीं ला सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि सिग्मा एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव एंड सिग्मा एफ वाई शुड बी पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज में थीटा होगा, को निकाल लेंगे। यदि मान लीजिए सिग्मा एफ वाई शुड बी पॉजिटिव एंड सिग्मा एफ वाई शुड बी निगेटिव, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा अपना, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और रिजल्टेंट हमारा यहाँ से आर पास करेगा, और आर का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो हमारा डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में 180 माइनस थीटा। सिमिलरली यदि सिग्मा एफ एक्स निगेटिव हो गया और सिग्मा एफ एफ वाई भी निगेटिव हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट जो है ये लाई करेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और इसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज में 180 प्लस थीटा होगा। यदि ये केस हो गया सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव है, सिग्मा एफ वाई निगेटिव है, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और जो एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन होगा 360 माइनस थीटा। और यहाँ पे जो हमारा थीटा जो हम लोग निकालते हैं tan थीटा, तो निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, सॉरी एफ वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स। सो हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ वाई निकालेंगे, फिर देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में सिग्मा एफ एक्स को डिफाइन करेंगे, सिग्मा एफ वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यदि मान लीजिए सिग्मा एफ एक्स निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव डायरेक्शन में, सिग्मा एफ वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसके बीच से रिजल्टेंट पास करेगा, और ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा 180 माइनस थीटा। यदि मान लीजिए सिग्मा एफ एक्स निगेटिव हो गया, सिग्मा एफ वाई दोनों निगेटिव हो गया, तो ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और इसका जो एंगल 180 प्लस थीटा पे इसका डायरेक्शन होगा। सिमिलरली यदि मान लीजिए सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव हो गया, सिग्मा एफ आई निगेटिव हो गया, और रिजल्टेंट हमारा यहीं से पास करेगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा 360 माइनस थीटा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, और लेटेस्ट लेक्चर भी मिलते रहेंगे।